Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss ARSN2 mechanism. In previous lecture we have discussed ARSN1 mechanism. So what is ARSN2 reaction? ARSN2 reaction means aromatic substitution nucleophilic substitution aromatic substitution nucleophilic bimolecular बायमोलिकुलर का मतलब क्या होगा आगे समझ में आ जाएगा आपको, मैकेनिज्म करेंगे तब। अब देखिए जो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, ये वाले रिएक्शंस सबसे ज्यादा कॉमन होती हैं। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, most common reaction of aromatic compounds. Now the rate of this reaction depends on the following factors, or we can say reactivity of ARSN2 reaction depends on following factors. First one is it depends on the nature of the living power of the living group. So the reactivity of ARSN2 reaction is directly proportional to living power of living group. Also, the reactivity is directly proportional to minus R or minus I effect of the groups powers of the substituent present on ortho or para position or both. Now the third factor is reactivity depends on the electronegativity of heteroatom. Also, reactivity is directly proportional to the nature of the solvent and polar aprotic solvent increase the reaction. Polar aprotic solvent will enhance the rate of the reactions. तो ARSN2 रिएक्शन है क्या? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। इस टाइप की रिएक्शन सबसे ज़्यादा कॉमनली आपको मिल जाएंगी। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है लिविंग पावर के ऊपर, कि आपका जो लिविंग ग्रुप है उसकी लिविंग पावर जितनी ज़्यादा बेटर होगी रिएक्शन की रेट उतनी ही फास्ट होगी। ऐसे ही जो सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है कंपाउंड के ऊपर, तो सब्स्टिट्यूएंट की माइनस आर और माइनस आई पावर पर भी डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। साथ में अगर कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो हेटेरोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी रिएक्टिविटी। और अगर हम बात करें सोलवेंट की, तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट रिएक्शन की रेट को इन्हांस करते हैं। Now there are some examples of ARSN2 reactions. First type of example are in which there is no activating group. For example, आपके पास कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन. When this chlorobenzene is hydrolyzed with aqueous sodium hydroxide at very high temperature like 300 degrees Celsius and 200 atmospheric pressure, then there is formation of phenol. So, formation of phenol from chlorobenzene is an example of ARSN2 reaction. Also, when this chlorobenzene is treated with
aqueous ammonia, aqueous solution of ammonia in presence of cuprous oxide at very high temperature like about 200 degrees Celsius, then there is formation of aniline. How this aniline is formed? Here NH2 nucleophile replaces chlorine. Also there is an example of reaction in which chlorobenzene reacts with copper cyanide in pyridine. At again very high temperature, then there is formation of nitrile substituent of benzene, nitrile benzene. Okay. So these are some examples of ARSN2 reaction in which there is no activating groups are present. Now the next example are like that. Next examples have activating groups like nitro groups. अब हम जो एग्जांपल्स लेकर चलेंगे इनमें एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन था, उस क्लोरोबेंजीन को हमने एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने का मतलब है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल हमने लिया है इसमें पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है जो इस बेंजीन की क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी को इन्हांस करता है। तो यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ इथेनॉल सॉल्वेंट में, तो जो रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस पे होती थी, अब वो रिएक्शन यहाँ पर 150 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी। मीन्स अगर आपने बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया है तो आपको ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, माइल्ड कंडीशन में भी रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। अगेन यहाँ पर जो क्लोरीन था इसको हमने रिप्लेस कर देना है अमीन ग्रुप के साथ, तो ये आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन कंपाउंड आपको मिलेगा। ऐसे ही आप अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर आपको पैरा नाइट्रोफिनोल मिलेगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब ये रिएक्शन भी लो टेम्परेचर पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने पहले तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट किया और उसके बाद उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया है। तो एक्टिवेट करने से रिंग जो कंपाउंड है वो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन शो करता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज क्लोरोबेंजीन डेरिवेटिव इन विच देयर आर टू एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लाइक ऑर्थो एंड पैरा डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये आपके पास दो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, एक ऑर्थो पे है और दूसरा पैरा पोजीशन पे है। अब देखिए अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो अमोनिया के साथ, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो हाइड्रोजीन के साथ कर सकते हो, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल है, किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। आप इसकी रिएक्शन कर सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएंट को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा, अगेन जो क्लोरीन है वो रिप्लेस होगा अमीन के साथ। प्रोडक्ट तो इनमें भी सेम ही मिलेगा आपको, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब ये जो रिएक्शन सब्स्टिट्यूएंट था, कंपाउंड था, इसके अंदर दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन और भी माइल्ड कंडीशन में हो जाएगी, आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। Here phenol will be formed or 2,4-dinitrophenol will be formed as a product. तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसके अंदर क्या है कि जो आपका रिंग था उसको हमने एक्टिवेट किया है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की हेल्प से। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर रिंग क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट देकर चलेंगे और रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये आपकी बेंजीन था,
क्लोरोबेंजीन था, इस क्लोरोबेंजीन को एक्टिवेट करने के लिए हमने यहाँ पर इसकी दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिए हैं और हमने इसका कर दिया हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर फिनोल आपको मिलेगा, साथ में 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल आपको मिल जाएगा। ये रिएक्शन हो जाती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए फर्स्ट रिएक्शन जिसके अंदर क्लोरोबेंजीन की हमने रिएक्शन की थी, क्लोरोबेंजीन का जब हमने फिनोल में कन्वर्जन किया था तो 300 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जब हमने 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन लिया है फिनोल में कन्वर्जन के लिए तो 25 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वेरी लो टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ArSN2 रिएक्शंस? बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए इसके, अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ArSN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। नाउ द मैकेनिज्म, here also the mechanism involve two step, and first step is here this is benzene compound, this is leaving group. When this leaving group react with the nucleophile, and this first step involves slow attack or slow ipso attack, slow ipso addition। फर्स्टली क्या होगा कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल स्लोली ऐड होगा इप्सो पोजीशन के ऊपर। क्या होगा, ऐड होगा इप्सो पोजीशन के ऊपर, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। जैसे ये इप्सो पोजीशन के ऊपर ऐड होगा तो बेंजीन पे तो हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये आपका आ गया न्यूक्लियोफाइल और ये था आपका लिविंग ग्रुप। तो ऐसे इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे जिसमें ये ये होगा नेगेटिव चार्ज और ये बनाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते जाएंगे। ऐसे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख देंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें ये आपका जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि ओवरऑल इस टाइप से नेगेटिव चार्ज है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग ग्रुप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे अरेनियम आयन की फॉर्मेशन होती थी बिल्कुल ऐसे यहाँ पर एनायन की फॉर्मेशन होती है, इप्सो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, एडिशन शो करता है इप्सो पोजीशन पर। And this first step is a slow step. Now the step number 2, second step. In step 2, the intermediate formed is the fast elimination of living group and the formation of the nucleophile substituted product. So this is the mechanism of aromatic substitution nucleophilic biomolecular reaction. आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि ArSN2 रिएक्शन के लिए एविडेंस क्या क्या है जो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट आर द एविडेंसेस? सो फर्स्ट इज एविडेंस इज दैट इन मैनी केसेस सोल्ट ऑफ द पोस्टुलेटेड इंटरमीडिएट, जो हमारा इंटरमीडिएट बना है ये जो हमारा इंटरमीडिएट है इसको हम क्या बोलते हैं, मेजनहेमर सोल्ट। क्या बोलते हैं, मेजनहेमर सोल्ट। तो जो इंटरमीडिएट बनता है इसको आइसोलेट किया गया और आइसोलेट करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर अराइल एनाइन की फॉर्मेशन होती है। ओके, फर्स्ट स्टेप आपकी
जो फर्स्ट स्टेप है ये आपका स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। अगर लिविंग ग्रुप आपका, नेक्स्ट एविडेंस क्या है कि अगर आपका लिविंग ग्रुप जो है, जैसे कि लिविंग ग्रुप आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से अगर हम बात करें तो अगर लिविंग ग्रुप आपका आयोडीन है तो रिएक्शन की रेट फास्ट होगी, अगर लिविंग ग्रुप आपका फ्लोरीन है तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, स्लो होगी। तो ये मैकेनिज्म है जो बताता है कि गुड लिविंग ग्रुप फास्ट रिएक्शन शो करता है और एक बैड लिविंग ग्रुप स्लो रिएक्शन शो करता है।